Let us see achiever section, question number 16. The decreasing order of heat conducting property of four metals A, B, C and D is A greater than B, B greater than C, greater than D. An experiment was conducted to find out how these different metals when combined will conduct heat. A small ball of candle wax was placed on one end with a flame near to the other end. The setup are shown below, in which setup will the wax drop off first. कौन से वाले सेटअप में वैक्स सबसे पहले गल के गिर जाएगा, किस में ऐसा होने वाला ये हमें बताना, ठीक है. लेट अस लुक एट द सेटअप ए बी सी एंड डी. See here, in this arrangement, in this setup, you can see that in option D there is a setup of BAB. और BAB हमने यहाँ पर देखा हुआ है कि A और B इनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये जल्दी हीट होगा और इसका वैक्स जल्दी फॉल ऑफ हो जाएगा, है ना. दिस विल ड्रॉप ऑफ फास्ट. सो ऑप्शन D इज योर करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. Four different types of matter are put into the syringes as seen in the before diagrams. The opening of each syringe is then covered tightly and the piston is pushed as hard as possible. The result of each syringe are shown in the after diagrams. ठीक है. Now look at the diagrams. Diagram W, X, Y and Z. Which syringe is most likely to have turmeric powder? As you know that turmeric powder is a kind of solid, है ना. It's a solid. So when the piston will be pressed, it will not be pressed. वो कम नहीं होगा. जब piston को press किया जाएगा, there will be no effect on the turmeric powder. So the turmeric powder will remain as it is, because that's not a liquid. So it will remain as it is. So option B is correct here. Syringe in the diagram X. Now see question number 18. Refer to the given figure. This is the figure. Let us read the options and then we'll understand कि ये figure क्या है, क्या बता रहा है. एक तो ये cooling और ये heating, है ना. Red one is showing heating और ये जो blue color है ये आपको cooling दिखा रहा है, purple one. Identify X, Y, Z, P, Q, R, S and T and select the correct option. अच्छा. Naphthalene balls changes to state Z by the process of T, whereas water in state X changes to ice cube by the process of P. Very good. देखो प्रोसेस P क्या है, कूलिंग, यानी कि यहाँ पे फ्रीजिंग होगा. अगर यहाँ पर वाटर को अगर कूल किया जाए तो ऑब्वियसली वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, आइस बनेगा. और नैप्थलीन को, अगर यहाँ नैप्थलीन है Y, नैप्थलीन को अगर हीट किया जाए T, ये रेड कलर जो है वो हीटिंग शो कर रहा है, हीट किया जाए तो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन वो गैस फॉर्म में आ जाता है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है. अच्छा, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. आइस क्यूब्स चेंजेस टू स्टेट Y, आइस क्यूब चेंजेस टू स्टेट Y बाय द प्रोसेस ऑफ Q. देखो आइस क्यूब Q के प्रोसेस से आइस क्यूब Q के प्रोसेस से वाटर बन जाएगा, ठीक है. इन स्टेट Z, वाटर इन स्टेट Z चेंजेस टू स्टीम बाय द प्रोसेस ऑफ R. चेंजेस टू स्टीम, यहाँ पे तो ये तो स्टीम नहीं बन रहा है ना, ये तो लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, रॉन्ग है. बटर चेंजेस टू स्टेट Z बाय द प्रोसेस ऑफ R. By the process of R, butter changes to state Z, whereas water changes to state Y by the process of S. No, this is also not correct. ठीक है. हीटिंग के प्रोसेस से फिर से वो आइस नहीं बनेगा, कूलिंग प्रोसेस चाहिए उसके लिए, फ्रीजिंग प्रोसेस चाहिए तो ही वाटर आइस बनेगा, है ना. तो ये हमारे ऑप्शंस गलत है. ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर. Now let us see question number 19. Read the given passage and select the correct inference from the information provided in it. In liquid, the molecules are not packed as close together as in solid. ये तो हम जानते ही हैं.
बीच में स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द शुगर मॉलिक्यूल्स फिल दीज एम्प्टी स्पेसेस। जब शुगर मॉलिक्यूल उसमें डिजॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स उसमें फिल करते हैं। तो अब इसके ऑप्शंस को देखें। देखिए इसकी इन्फ्रेंस क्या है, व्हेन शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस, नहीं, वॉल्यूम तो उसका डिक्रीज नहीं होना चाहिए बल्कि वॉल्यूम उसका बढ़ना ही चाहिए। लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम तो है ना, तो ये भी नहीं होगा। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, yes liquid can flow. If we dissolve sugar in water then all the empty spaces between the water molecules will be filled up with sugar molecules and no more sugar can be dissolved. Yes, ये बिल्कुल होता है, जितना जो स्पेस बचा हुआ उतना ही हम शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम शुगर ऐड करेंगे वाटर में तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो अनडिज़ोल्व रह जाएगा। तो हमारा यहाँ थर्ड और ये फोर्थ, ये दोनों इन्फ्रेंस हमारा सही है। सो ऑप्शन डी 3 and 4 only is the correct one. Now let us see the last question. 20. Acheen conducted an experiment to find out the amount of light that can pass through 3 different materials: a clear plastic sheet, a cardboard and a piece of tracing paper. All the materials have the same thickness. He shone a torch to the 3 materials are used a light sensor to measure how much light has passed through each of them. Which of the following graph most likely show the amount of light that has passed through each material? देखो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर जो बताया हुआ ना वो क्या है, प्लास्टिक शीट है, क्लियर प्लास्टिक शीट से तो ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ लाइट होगा, है ना। कार्डबोर्ड से तो बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी क्योंकि वो ओपेक मटेरियल है। और उसके बाद है पीस ऑफ ट्रेसिंग पेपर, और ट्रेसिंग पेपर से कुछ लाइट्स, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उससे पास होगी। तो यहाँ पर अगर आप सारे ही ऑप्शंस को देखें ना तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, अमाउंट ऑफ लाइट क्लियर प्लास्टिक शीट से ज़्यादा पास होगी, ट्रेसिंग पेपर से थोड़ी थोड़ी, और कार्डबोर्ड से बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। कार्डबोर्ड से ज़ीरो वाला सिर्फ यही वाला एक है, बाकी ऑप्शंस आप देखिए तो कार्डबोर्ड से ज़ीरो कहीं नहीं दिखा रहा आपको, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट दिखा रहा। तो इतनी लाइट तो पास होनी नहीं है बिकॉज कार्डबोर्ड इज़ एन ओपेक मटेरियल। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 5 एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर नंबर 6।